Silver, Kisan Vikas Patra. We have PPF also. I think Public Provident Fund. It is one of the best scheme, I must say, which is available here at that today's scenario. I understand that now it's return is less. Earlier is 10, then it's moved to 9, then it's 8.9, then 8.1, now it's 7.9. Now it's, I think, government announced 7.1 or 7.2. So PPF, but still it is a compounding scheme. I am repeating, it's not a simple interest scheme. It is a compounding interest scheme. Your interest is compounding, and compounding means that you are getting the return. And if you invest, you can invest up to 500 rupees to a maximum 1,50,000 rupees. So it's not necessary that you can always go for other schemes, but the only thing in this scheme is that the risk is very less, slightly compared to other scheme which I'm going to discuss later. Here the risk is very less. I'm not saying negligible, but still risk is very, very less, provided this country cannot become a Greece. But still, if it is India, definitely the risk is less in these schemes. Then we have non-conventional investment avenues. The non-conventional investment avenues I'm talking about: equity shares, preference shares, public sectors, bonds, derivatives. There are some more scheme also, which you have, I think, heard. In equity shares and mutual funds, I'm considering more. We have InvITs also, investment trust fund. We have REITs also, a real estate investment trust. These are the two new schemes comes. And some IPO also comes through these two schemes, InvITs also and REITs also. And just for your knowledge sake, I'm taking the names of these two schemes. But here I'm considering more on mutual funds and equity shares. Equity shares, everybody knows. I think students see what is equity shares all about. When you purchase shares from the company, as I've already said, then we have derivatives. Derivatives को हम financial derivatives की अगर बात करें तो we have, हिंदी में आपने काफी बार सुना होगा, वायदा बाजार भी कहते हैं इसको हम हिंदी में, काफी बार न्यूज़ में आता है वायदा बाजार. It is basically called as future number 1, option number 2, and swaps number 3. So we have 3 types of schemes: future, option and swaps. तो मैं यहाँ पे अभी तीनों ही नहीं बता पाऊंगा क्योंकि टाइम लेस है. मैं केवल थोड़ा सा 1 मिनट के लिए फ्यूचर बता देता हूँ. फ्यूचर मार्केट होती क्या चीज है? फ्यूचर मार्केट और कैश मार्केट, दे आर 2 टाइप्स ऑफ मार्केट वी हैव, कैश मार्केट एंड फ्यूचर मार्केट. मैं स्टूडेंट्स आपके लिए बता रहा हूँ क्योंकि आप में से कुछ लोग इंटरेस्टेड होंगे कि सर स्टॉक चेन में कैसे ट्रेडिंग होती है, क्या होता है. तो मैं बताना चाहूंगा, अगर आप नेशनल स्टॉक चेन में ट्रेडिंग कर रहे हैं, सबसे पहले आपको अपना डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा. डीमेट अकाउंट के लिए आप किसी भी ब्रोकर पे जा सकते हैं. एक तो ब्रोकर की चेन है, आपने सुना होगा, आनंद राठी सुना होगा, एसएमसी ग्लोबल सुना होगा, जीरोधा सुना होगा, आपने शेर खान सुना होगा, फिर इंडिया इन्फो लाइन सुना होगा, काफी सारे हैं, एडलवाइस सुना होगा, जीएम फाइनेंशियल सुना होगा. ये सारे ब्रोकर्स फर्म्स हैं जो ट्रेडिंग करते हैं. फिर आपने एसबीआई कैप सुना होगा, एचडीएफसी का सुना होगा, आईसीआईसी का सुना होगा. ये एक तरह से इन्वेस्टमेंट है, बैंकर हैं, ये भी शेयर आपका समाते. बैंकिंग फर्म्स हैं, वो ब्रोकर फर्म है. दोनों में फर्क होता है. फर्क एक तो ये फर्क हो गया. दूसरा इसमें जो इनके पैसे चार्ज करने का है, जिसे हम कमीशन कहते हैं या ब्रोकरेज फीस होती है, उसका भी थोड़ा फर्क होता है. उसके बाद डीमेट अकाउंट खुलाने के बाद, डीमेट खुलाने के लिए आपको पैन कार्ड सबसे इंपॉर्टेंट होता है. फिर 2 फोटो चाहिए होती है आपको, साथ में आपको एक रेजिडेंशियल प्रूफ चाहिए होता है. वो आपका घर हो सकता है या राशन कार्ड हो सकता है या आपका लाइसेंस हो सकता है. देन यू हैव टू फिल द फॉर्म एंड देन यू कैन ओपन द अकाउंट. आफ्टर दैट यस, आपको बैंक का भी डिटेल देनी पड़ती है. उसके बाद आप डीमेट अकाउंट क्यों खुलता है? डीमेट खुलता है जब आईपीओ में पैसा लगाते हैं. आप आईपीओ पैसा लगा रहे हैं, आपने पैसा लगाया आईपीओ के थ्रू, और बाद में आपका पैसा जब शेयर लग गए आपके डीमेट में आ गया. पर डीमेट में तो आ गया, अब आप कहोगे सर बेचना है मुझे ट्रेडिंग करनी है. म्यूट योरसेल्फ सलोनी. जब आपको ट्रेडिंग करनी है तो ट्रेडिंग करने के लिए भाई आपको फिर ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना पड़ेगा. तो उसे हम कहते हैं ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट भी ब्रोकर ही खोलता है, उसके पैसे लगते हैं. तो एक तरह से आपको 2 अकाउंट है, इसलिए बता रहा हूँ, एक डीमेट अकाउंट खुलता है और एक ट्रेडिंग अकाउंट खुलता है. दोनों खोलने के बाद देन यू कैन गो फॉर ट्रेडिंग. तो अब आपने जब ट्रेडिंग शुरू कर दी, अब आप सपोज कैश मार्केट में कहा सर मुझे रिलायंस का शेयर लेना है, आपने एक शेयर लिया रिलायंस का. अमित जी सॉरी टू इंटरप्ट यू, 2 मिनट के बाद दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा क्योंकि इसका 40 मिनट का टाइम होता है ना. कोई बात नहीं, कर लेंगे, कोई बात नहीं. आपको ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा लिया, आपने ट्रेडिंग करनी शुरू कर दी. आपने कहा सर मुझे शेयर खरीदना, आपने फोन किया ब्रोकर को,
कि भाई रिलायंस का शेयर कितने का आ रहा है, कहता 1450 का, कहता मेरा शेयर ले लीजिए, कितने कितने सर, एक शेयर ले लीजिए, उसने ले लिया, आपने रख लिया लेके, 1450 का लिया और अगले दिन 270 का हो गया, 1470 का, तो आपने 20 रुपए में बेच दिया। तो ये तो हो गया कैश मार्केट। हो सकता है आपने एक शेयर लेके रख लिया, अगर एमआरएफ का शेयर लेते हैं तो 55,000 का शेयर है, मद्रास रबर फैक्ट्री, जैसे एमआरएफ टायर कहते हैं, मद्रास रबर फैक्ट्री के नाम से, उसका शेयर 55,000 का है, तो 55,000 का एक शेयर कह रहा हूँ, तो 55,000 का एक शेयर लिया और रख लिया आपने, 55,000 रुपीज लगा दिए। 6 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद आपने रखे रहे, भूल गए आप 1 साल तक, कोई बात नहीं, बोल सकते हैं उसमें कि आपने पैसे दिए हुए, इन्वेस्टमेंट किया आपने, उससे हम कहते हैं कैश मार्केट। क्यों? क्योंकि आपने कैश में पेमेंट कर दी। फ्यूचर मार्केट स्टूडेंट्स क्या होता है, फ्यूचर मार्केट में जैसे आपने पढ़ ही रहे होंगे, फ्यूचर का मतलब ये होता है जब फ्यूचर में खरीद रहे हैं, आपने खरीद तो लिया है पर फ्यूचर में खरीदा और आपको उसमें पूरे पैसे नहीं देने हैं। पर फ्यूचर में हम एक शेयर नहीं खरीदते, पहली बार वहां पे लॉट खरीदते हैं, LOT लॉट मींस एक शेयर नहीं मिलेगा वहां पे, आपको एक बंच खरीदना पड़ेगा। वो बंच क्या होता है?